मतलब आपने कभी फंचो के बारे में सुना था? किसने तो भी एक कार्यकर्ता ने मुझे आपका वीडियो दिखाया था, वो कॉलेज के सामने पानी भरा था. That time I was little pissed off on you guys. If you are a CM or a PM for a day. I am happy with what I am. तो विरार के बीचेस से बहुत प्यार है. बीचेस बोला ना? मैंने बीचेस बोला था. ठीक है. मैंने बीचेस बोला अच्छे से, मैंने ध्यान से बीचेस बोला. 20 minutes मेरे घर से स्कूल रहना मांगता है, 20 minutes मेरे घर से ऑफिस रहना मांगता है, 20 minutes मेरे घर से क्रिएटर सिटी रहना मांगता है. क्रिएटर सिटी. Subtle promotion, guys. We have not taken any money for this. Please. Why don't you guys become the brand ambassador of Vasai Virar Municipal Corporation? Hey guys, so we are back. Sham and Dhruv, and आपको थोड़ा कुछ अलग सेटअप दिख रहा होगा आज. Today we are not doing podcast, though it's a podcast setting. Podcast में ना माइक होना जरूरी है जो मुंह तक आता है. जरूरी मतलब पूरा मुंह में घुसना चाहिए, तो वो So if that is पॉडकास्ट not होता है. there, then we'll call it interview. Welcome to this new genre of content, and I hope you guys start liking it. The person that is sitting right next to us is none other than Our MLA Kshitij Thakur. For people, I mean, obviously Vasai, Virar, Sopara, Palghar, everybody knows you. But for people who don't know you, because a lot of people from entire India follow us. So, small brief introduction you want to give? I am Kshitij Thakur, MLA from Vasai Virar. Got elected in 2009. Passionate about reading books, learning new things. Try to do as much social as possible. Have my own different businesses, and that's about it. कि प्रॉपर ऐसे इंटरव्यू ऐसा साउंड किया कि प्लीज स्पीक समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड एकदम से जो अपने क्षितिज भाई एकदम से सो आया एकदम से फुल ऐसा हो गया. सो लेट्स जस्ट ब्रेक इट. एंड भाई वी आर सो एक्साइटेड टू आई मीन sit right next to you. So we have been staying in Virar and we have just heard great stories about you, about the work that you have done, and we have always been like कि भाई से मिलना है, मतलब let's talk. I mean we want to let's know have more about you, like what conversations, exactly. So finally we have got this opportunity. Elections are there and you also wanted to. So I'm like, this is a perfect The opportunity. Let's only go. And time when we can have this. But So- नहीं, yeah. for you guys anytime. So, I mean, first question. Do you मतलब आपने कभी फंचो के बारे में सुना था? Do you know about creators since we are from creator community? Do you know social media क्या चल रहा है? How, where it's going, what's going on? लिमिटेड नॉलेज है मुझे. आपके बारे में तो ऑब्वियसली सुना था, क्योंकि द फर्स्ट टाइम जब मैंने आपका वीडियो देखा था, दैट टाइम किसने तो भी एक कार्यकर्ता ने मुझे आपका वीडियो दिखाया था, वो कॉलेज के सामने पानी भरा था. Oh, वो वाला इंसिडेंट. वो वीडियो आपने बनाया था, एंड दैट टाइम आई हैड नो क्लू कि आप फनी वीडियोस बनाते हो. एंड कोई तो भी एक कार्यकर्ता आया कि दादा ये देखो, अपने अगेंस्ट ये लोग विरार के लोग हैं और ऐसा ऐसा कर रहे हैं. एंड दैट टाइम आई वाज लाइक, व्हाई आर दे क्रिएटिंग दिस न्यूसेंस एंड रॉकस, yeah. एंड ये क्या फालतूगिरी चालू है वगैरह. एंड दैट टाइम आई वाज लिटिल पिस्ड ऑफ ऑन यू गाइस. But then I realized that it's, you know, it's an honest, whatever, funny channel, and Yeah. then there was no ulterior motive आपकी तरफ से कुछ ऐसा गलत intention से वो वीडियो नहीं बनाया था. It's just a light comedy वगैरह, and that's how I got introduced you to आपका तो channel पंचो कि अभी मैं इन पे ज्यादा ध्यान रखूंगा, ये लोग और क्या करते हैं. So मैं बताता हूँ हुआ क्या था. So we made a funny video. I'll again tell you. हमने बनाई थी वीडियो रेन्स पे. What happens when it rains? तो पूरे इंडिया में कई जगह बहुत पानी भरता है, सीन होता है, एंड वी हैड मेड अ सीन वेयर जहाँ पर पानी भरा है तो इंडियंस मिजरी में भी फंड ढूंढते हैं. Right. कि प्रॉब्लम्स हो रहा है बट उसमें भी फंड ढूंढो. सो वी हैड डन अ सीक्वेंस वेयर कि पानी भरा है बट हम हमारा वो क्या बोलते हैं उसको, Raft. हाँ राफ्ट लेके आ रहे हैं, पूल Basketball. वॉलीबॉल खेल रहे हैं. सो वी डन दैट पार्ट. उसमें विवा कॉलेज दिखा था. खोलो ये अपना imagination, यहाँ तो crazy हो जाएगा. Family fun का नया destination, मस्ती में time यहाँ उड़ जाएगा. So I think मुझे how I came to know is somebody called me and said कि तुम्हारी वीडियो में what has happened is some other party is using your video to promote their agenda against the BVA. तो मैं बोला भाई ये हमारे क्लिप क्यों यूज कर रहे हैं? हमने तो कुछ नॉर्मल फनी वीडियो. And that is how I mean it was our first impression. And then So we also did a little bit funny thing with our कार्यकर्ता. मतलब घेऊन नाही रे त्यांना. And then we are here to do interview together. So Kshitij Dada, I mean, so first of all,
आपको मैं क्षितिज भाई बोलूं, क्षितिज बोलूं या बिट्टू बोलूं? Whatever you want to call. You are very well known as Bittu Dada in You can call me Bittu Dada. Your entire family names are all nicknames. Bittu, Honey, और कौन से नाम है? Dinky, Dinky. Bablu, Monty, Chiku, Honey. तो जब भी हम लोग बात करते हैं तो बोलते हैं डिंक, मैं बोला एक सेकंड, कौन डिंकी भाई, वो कौन से वाले भाई है? वो बोलते हैं हाँ बिट्टू, मैं बोला कौन से वाले भाई है? सो ये बहुत फनी चीज है कि मतलब एवरीबडी हैज अ नेम एंड एवरीबडी रिस्पेक्ट्स दैट। मतलब मैं जब भी विरार वसई कहाँ पे भी जाता तो एवरीबडी इज लाइक बिट्टू दादा ये वो, तो मुझे बहुत जेन्युइनली अच्छा लगता है दिल से। पॉलिटिक्स, तो मुझे ये जानना है कि यू आर अ पॉलिटिशियन ऑब्वियसली, तो अपार्ट फ्रॉम द वर्क दैट यू डू, पॉलिटिक्स तो आप कर, मतलब पॉलिटिशियन तो आप हो ही, वो तो आपका प्रोफेशनल काम है। हाउ डज योर पर्सनल लाइफ लुक लाइक? आई मीन काम करने के बाद, बिकॉज वी हैव नो आइडिया, मुझे लगता है कि आप दिन भर सब सिर्फ साइन करते रहते हो, फोन पे बात करते हो, ये पास करना है, ये नहीं करना है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट The perception of a politician is कि वो साइन कर रहा है, वो भाषण दे रहा है, वो ये अप्रूव करा रहा है, वो अभी 3-4 गाड़ी में कॉन्वॉय जा रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। What do you want to know? How does it look like? How does your day look like? So my day अलग अलग जगह पे फील्ड पे प्रोग्राम्स रहते हैं, लोग हमें अलग अलग चीज़ों के लिए इनवाइट करते हैं, सोशल कॉजेस के लिए अलग अलग प्रोग्राम साल भर चालू रहते हैं, रेंज में कम होते हैं तो वो हम लोग विजिट करते हैं, अलग अलग लोगों को साल भर मिलते रहते हैं। अलग अलग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अप्रूवल प्रोसेस के लिए असेंबली सेशन साल में 3 बार होता है, मंत्रालय जाना पड़ता है हफ्ते में 1 या 2 बार, अलग अलग योजना। मंत्रालय वेयर एग्जैक्टली? मंत्रालय इज टाउन राइट। So how do you travel? Train or गाड़ी? So I used to travel by train in the initial days. बाद में धीरे धीरे जब फेस पॉपुलर होने लगा, दैट टाइम स्पेशली लोकल ट्रेन में जब पीपल गॉट टू नो दैट क्षितिज ठाकुर इज एन एमएलए एंड व्हाट नॉट, तो ट्रेन में फोटो सेशन ज्यादा चालू हो गया। We can relate to it definitely. तो ऑफ कोर्स यस, यू गाइस आर लार्जेस्ट सेलिब्रिटीज एंड Obviously not. नहीं यार, थोड़ा बहुत। तो वो फिर तो वो सब थोड़ा सा फिर देन आई स्टार्टेड गोइंग बाय कार टू टाउन, एंड कार में बैठे बैठे फिर फ़ोन कॉल्स हो जाते हैं, काम हो जाता है, बिकॉज 2.5 hours टाउन पहुंचने को लगता है। तो इनिशियली आई हैड टू ट्रैवल बाय ट्रेन लॉट, एंड देन इन द लेटर डेज आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग बाय कार मोर। आई हैव ट्राइड टू कीप पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड फैमिली लाइफ एज सेपरेट एज पॉसिबल, मिक्स नहीं होने देता मैं। लाइक आपने देखा रहेगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस बिजनेस और पॉलिटिक्स को मिक्स कर डालते हैं, पॉलिटिक्स और फैमिली को मिक्स कर डालते हैं। Right. तो यू विल नेवर सी लाइक माई फैमिली प्रमोटिंग पॉलिटिक्स वॉट नॉट, लाइक माई वाइफ, किड्स, ऑल ऑफ दोज पीपल। इलेक्शन में ठीक है, एवरीबडी वॉन्ट्स टू डू देयर बिट, तो वो टाइम पे तो सब लोग फील्ड पे उतरते हैं, बट अदर देन दैट आई हैव ट्राई टू कीप पॉलिटिक्स अलग रहना मांगता है, मेरा बिजनेस लाइफ जो है वो अलग रहना मांगता है, वो मिक्स नहीं करता मैं। एंड आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली, तो जितना ज़्यादा टाइम हो सके वो मैं फैमिली के साथ स्पेंड करने का कोशिश करता हूँ। दिस इज द टाइम फैमिली का। बताइए कि कौन कौन है फैमिली में, इफ यू कैन, इफ यू डोंट माइंड, मतलब कि I don't mind at all. My family is massive, and when I talk about my family, it's not only Thakurs. There are so many different people who have been associated with us. Historically, हमारे family के साथ लोग जुड़ते गए. Rarely कोई तो भी छोड़ के गया family. तो we consider all of those people as a family. मतलब आज आप इलेक्शन के माहौल में आप भी अलग अलग जगह पे घूम रहे हो. The dedication that people have towards us is unreal. मतलब I get goosebumps when I see these senior old men, women door to door कर रहे हैं, हमारे लिए कर रहे हैं। Wow. हम कौन है उनके? maybe it's the work that you have done, maybe it's about things that you have done that must have inspired those people कि भाई The love that the residents of Vasai Taluka, the people of Vasai Virar have given us is unreal. मतलब उसके लिए नसीब लगता है। And I think we are fortunate to be born in the Thakur family. We respect the love and appreciation that people give us. और वो हम सर में नहीं जाने देते। तो always try to be grounded. जिधर भी लोग मिलते हैं, we try to respect them as much as possible. अहंकार नहीं आने देते। So when you talk about family, that is what I consider as family. wow, तो सिंडिकेट बोलते हैं, कुछ लोग माफिया बोलते हैं, सो दिस इज व्हाट अ सिंडिकेट लुक्स लाइक। हाँ, बहुत मिसकंसेप्शंस तो है। misconceptions तो अभी मतलब I know, I think know. we should do a video where we are just breaking the misconceptions that there are about Yeah, the family. But I am okay with those misconceptions. Like people of Vasai Virar know what we are, and outside Vasai Virar people have a different perception, which also I am okay with. perceptions तो लोग बनाते रहेंगे। I I am mean, completely okay what with can what we do? people think, as long as I know कि मेरे मन में जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं स्टेप्स ले रहा हूँ,
जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ वो सही दिशा है. आई डोंट रियली केयर अबाउट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. एज लॉन्ग एज मुझे लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है, इन द लॉन्ग रन लोगों को समझ में आता है. मैं काम करने में बिलीव करता हूँ. आई एन्जॉय वर्किंग. एक भी दिन छुट्टी नहीं लेता मैं. लाइक आई एम दिवाली में आई एम इन ऑफिस, 31 दिसंबर आई एम इन ऑफिस, मतलब होली नवरात्रि पकड़ो आई एम इन ऑफिस. सो एज यू सेड कि मतलब यू जस्ट कीप वर्किंग जो आपको सही लगता है. सो आई मीन हर एक इंसान का अलग अलग ओपिनियंस होता है. सो व्हेन फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू डू समथिंग, सो आई मीन डू यू टेक ओपिनियंस टू फ्रॉम योर टीम और मे बी योर फैमिली कि मैं ये करने का सोच रहा हूँ. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू डू समथिंग फॉर वसई विरार, so how does it happen, like the process? So the process generally happens in multiple stages. One is different class of people have different requirements. Correct. आप अगर सोपारा ईस्टर्न बेल्ट में चले जाओ तो बहुत गरीब लोग रहते हैं, तो उनके ज़रूरतें बहुत अलग है. आप वसई कोस्टल बेल्ट पे चले जाओ तो बंगलोज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा बेटर है. पीपल हैव सीन वेल्थ इन दैट बेल्ट. उनके एक्सपेक्टेशन अलग है. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स इन टर्म्स ऑफ कौन से एरिया में क्या टाइप का प्रोजेक्ट करने का है. तो वो क्लास के लोगों को कंसिडर करके ही हमें थॉट प्रोसेस. जब मैं फर्स्ट टाइम एमएलए बना था, लाइक 2009, आई वाज द यंगेस्ट एमएलए व्हेन आई गॉट इलेक्टेड. You said the youngest MLA. I was. How old were you in 2009? 25 and a half, 26ish. USA पढ़ के आया था, and obviously the American dream. कॉलेज में all the colleagues and friends had that American dream. तो एक डिफरेंट परसेप्शन था कि मैं एमएलए बना है तो मुझे अमेरिका बनाना है. जाके तोड़ दूंगा अभी तो पूरा, खत्म कर दूंगा. न्यूयॉर्क एकदम अमेज़न. विद इन 6 मंथ समझ में आ गया कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने जो फ्रेमवर्क दिया है ना, उसके बाहर कितना भी इच्छा रहने दो आपको, यू कैन नॉट डू एनीथिंग. वो फ्रेमवर्क के अंदर, वो दायरे में रह के ही काम करना है. मतलब मुझे इधर स्मार्ट सिटी बनाने का है, इज नॉट गोना हैपन. एंड द रीजन व्हाई इज नॉट गोना हैपन इज योर वाटर सप्लाई इज अंडर municipal corporation. Your railway is under central government. Your bus service is either state government or municipal corporation. Your MSCB is under state government. तो ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंटीग्रेट करना है तो ही स्मार्ट सिटी पॉसिबल है. Unless all these different government departments speak to each other, Right. Correct. it is not possible to create a smart city. हर गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी है तो वो एक दूसरे का काम कैसे होने देगी? Exactly. तो इट्स अ विजन बोलो या ड्रीम बोलो, स्मार्ट सिटी अनलेस ऑल ऑफ दीज कम टुगेदर, इंस्टीट्यूशंस टॉक टू ईच अदर, स्मार्ट सिटी इंडिया में बन ही नहीं सकता है. अ लॉट ऑफ पीपल से जैसे रोड खराब हो जाता है तो इन लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, या कुछ इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया तो कुछ नहीं कर रहे. अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो what actually The role of an who? MLA is, what role of a state government is, municipal corporation is. I want you to tell के मतलब अगर समझो रोड गंदा है, फॉर एग्जाम्पल रोड पे खड्डे हैं, तो हाउ टू रीच आउट टू द राइट गाय टू लॉज अ कंप्लेंट और टू आस्क फॉर हेल्प, एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टुवर्ड्स इट, एंड वो क्यों टाइम लेता है या पानी नहीं आ रहा है तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज आई एम श्योर उस पे लॉन्ग प्रोसेस होगा. नोबडी वांट्स कि पानी नहीं है. करेक्ट. Nobody wants that. करेक्ट. तो वो लोगों को पता नहीं है, शायद मुझे भी नहीं पता. मुझे मेरे भी बिल्डिंग में मेरे तो एक दोस्त बार ने रोड बताया. खराब था, मैं ग्लोबल सिटी में रहता था, तो पुलिस पे पहुंच गए कि रोड टूटा हुआ है, रोड ठीक करो. मतलब एनर्जी वेस्ट करते हैं ना दूसरी जगह जा Correct. मे बी देयर इज अ राइट प्रोसेस टू इट व्हिच पीपल डोंट नो. Yeah. So who owns that road? You need to go to that person. Okay. So for example, because you mentioned road, I just have to like to interrupt. So when you say municipal, you mean to say नहीं, who owns that नहीं road? नहीं, जो आपने municipal बोला वो VVMC आप बोल रहे हो. correct. Okay, cool. अभी ओनरशिप रोड का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि वो कौन मेंटेन करता है. अभी हाईवे अगर खराब होता है और आप कॉर्पोरेटर के पास जाते हो तो गलत है. हाईवे इज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग. बड़ा करना है, अच्छा करना है, कंक्रीट का रास्ता बनाना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल. हाईवे से जो अंदर आने वाले सिटी को रोड जाते हैं वो स्टेट हाईवेज बोलते हैं. सो बिकॉज यू गाइज आर फ्रॉम विरार, हम विरार हाईवे से जब अंदर फाटा घुसते से जो हैं, अंदर आता है. फाटा से जो अंदर आते हैं वो स्टेट हाईवे है. Okay. लोगों को क्या लगता है वो वो भी- कॉर्पोरेटर का काम है. हाँ. वो स्टेट का रोड है. वो स्टेट रोड के अंदर से जो रास्ते जाते हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आते हैं. कुछ रास्ते जिला परिषद के अंदर आते हैं. द फर्स्ट थिंग दैट पीपल नीड टू अंडरस्टैंड इज रोड का ओनरशिप किसका है. किसका है? राइट. उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो मेंटेन करने का. कॉमन मैन को ये इतना डिटेल में चीज़ें पता नहीं रहता है.
वो रिस्पॉन्सिबल किसी को पकड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा दिखता है उसको रिस्पॉन्सिबल पकड़ते हैं। बिट्टू दादा बिट्टू दादा। बिट्टू दादा किधर है? कुठे आहे बिट्टू दादा? ऑफिस में चलो. तो हाईवे खराब है तो बिट्टू दादा का जवाबदारी, स्टेट हाईवे खराब है तो बिट्टू दादा का जवाबदारी, गली खराब है तो बिट्टू दादा का जवाबदारी, प्राइवेट रोड है तो बिट्टू। अभी आप ग्लोबल सिटी का बोला, हाँ जी. ग्लोबल सिटी का रोड कौन ओन करता है? I know. द लेआउट सॉरी, अच्छा डेवलपर ओन करता है। तो वो जब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को रोड हैंड ओवर नहीं करता है, देयर इज अ प्रोसेस टू हैंड ओवर दोस रोड्स। यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर क्वालिटी का रोड्स एंड देन देयर इज अ प्रोसेस टू हैंड ओवर द रोड्स। जब तक वो डेवलपर हैंड ओवर नहीं करता है तब तक जो लेआउट का ओनर वही रहेगा बनाएगा। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उधर भी बिट्टू दादा इज I know. रिस्पॉन्सिबल। मैं भी गया हूँ एक दो मोर्चे में. बिट्टू दादा काय आहे रोड बघा ना तुम्ही. मला आमंत्रण दिलं, मी पण तुमच्यावर मोर्चा लावलो असतो. सो बेसिकली इन्फॉर्मेशन फ्लो मेरे को लगता है आपको ना इंस्टाग्राम पे ऐसा बनाना चाहिए ऑफ इन्फॉर्मेशन, छोटे छोटे। अभी तो एआई आ गया है टू रीच, मतलब एक फॉर्म बना दिया जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने डाला रोड खराब है तो उसके अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है कि हाउ टू प्रोसेस फॉलो। करेक्ट। बिकॉज लोगों को प्रोसेस समझ ढूंढने के लिए भी नहीं पता रास्ता, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो। आज तक हम भी पढ़े लिखे हम सब है, बट नोबडी वांट्स टू टेक दैट एफर्ट कि मैं इतना, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड। उसके लिए बिट्टू दादा है। हाँ, तो मतलब आई थिंक तो आप जब भी बोल रहे थे कि व्हेन यू केम फ्रॉम यूएस, तो आपने भी बहुत एक सोचा था कि मैं वसी विरार को ऐसा बनाऊंगा, बट यू कुडंट डू इट बिकॉज ऑफ तो ऑब्वियसली जो आपने लेआउट बताया। तो ऐसे कि कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो, मतलब यू थॉट ऑफ डूइंग दिस बट द मोमेंट यू स्टार्टेड डूइंग इट कि शिट, मतलब कि नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस। एनी एक्सपीरियंस इफ यू जस्ट रिमेंबर? सो गोगटे सॉल्ट पैन, दैट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट। कौन सा? 1500 एकड़ का जो प्रोजेक्ट का मैंने विजन दिखाया था, हाँ. वो मेरा Where is ड्रीम this, प्रोजेक्ट sorry? है। दिस स्टार्ट्स फ्रॉम सोपारा, एक्सटेंड्स ऑल द वे टिल वसई। अच्छा, तो जो ट्रेन में राइट साइड का टुवर्ड्स मुंबई जाते टाइम पे जो पूरा ओपन प्लॉट है, वो पहले सॉल्ट पैन था, उधर सॉल्ट कल्टीवेट होने का। लास्ट 20 ईयर्स में सॉल्ट कल्टीवेशन हुआ नहीं है एंड उधर द एंटायर विजन वाज 100 एकर्स के 15 अलग अलग सिटीज बनाने के, विच विल हेल्प राइट फ्रॉम बर्थ टिल अ पर्सन पासेस अवे। कॉमन मैन को क्या क्या जरूरतें रहती है। सो व्हेन यू बॉर्न ऑब्वियसली यू नीड अ हॉस्पिटल, तो 100 एकर्स का हेल्थ केयर सिटी था। देन एजुकेशन मांगता है तो 100 एकड़ का स्कूल्स कॉलेजेस स्पोर्ट्स सेंटर्स 100 एकर्स में, माइस टूरिज्म 100 एकर्स में। तो ऐसा पूरा वो अलग अलग सिटीज R&D अब था 100 एकर्स में। तो वो पूरा नाइट ट्राइंग, वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड, उसको हायर किया था एज ए कंसल्टेंट टू डिजाइन दैट एंटायर विजन फॉर अस। आज तक लैंड लिया नहीं है, मतलब उसका लीज खत्म हो गया है। दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका लीज खत्म हो गया है। जब तक वो लैंड हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को हैंड ओवर नहीं करते, कितना भी बड़ा विजन होने दो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट पीस ऑफ लैंड। आज वो लैंड ऐसा ही 15 साल से पड़ा है। इट इज कंप्लीट वेस्ट एज ऑफ टुडे। ये मांगा था कब? 11-12 साल पहले। अगर वो 11-12 साल पहले अगर हैंड ओवर होता था म्युनिसिपल इंटरव्यू वहीं पे कर रहे होते हैं। कॉर्पोरेशन, एग्जैक्टली। लेकिन कॉमन मैन को क्या लगता है कि नहीं, पॉलिटिशियन ने ये ड्रीम दिखाया था और आगे कुछ नहीं किया। जब तक लैंड ही नहीं मिलेगा तो देयर इज नो वे आई कैन ब्रिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज विद इन आवर एरिया टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम। तो वो कैसा है, इच्छा बहुत है, जगह गवर्नमेंट जब तक देती नहीं, इच्छा चलने नहीं वाली। सो ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं। दूसरा, अपने कंट्री में चैलेंज क्या है कि एक कोई तो भी गलती करता है और वो गलती के लिए गवर्नमेंट नियम बनाता है जो 99% लोगों का कोई गलती नहीं रहता ना, उसको भी वो बांध डालते हैं। गवर्नमेंट ने क्या करना मांगता है, द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, वी मेक लॉज राइट। तो एक जन ने गलती किया ना, उसको स्ट्रिक्ट सजा दो। रूल चेंज करके जो 99% लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको उसके अंदर काय के लिए अटका रहे हो? करेक्ट। तो जिसने गलती किया है वो तो उसके ऊपर कार्रवाई होती ही नहीं, लेकिन 99% लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको अलग अलग नियम के दायरे में डाल देते हैं, विच इज नॉट द राइट वे टू डू इट। लाइक यू वांट टू प्रमोट इंडिया एज अ प्रो बिजनेस, आपको इंडस्ट्रीज लाने, आपको बिजनेसेस लाने के, तो मेक श्योर यू आर मेकिंग अ इकोसिस्टम वेयर 45 डिफरेंट लाइसेंसेस नहीं लगने मांगते। आप एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आप देखो कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपको धक्के खाने पड़ते हैं। आपको रिटेल स्टोर खोलने का है, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको धक्के खाने पड़ते हैं। वन साइड वी आर सेइंग दैट लेट्स मेक इंडिया अ प्रो बिजनेस और प्रो इंडस्ट्री, मेक इन इंडिया, बट देन व्हाई डू यू नीड लाइक 45 डिफरेंट लाइसेंसेस? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि वो बहुत इच्छा है,
ड्रीम प्रोजेक्ट है लेकिन वो मिल ही नहीं रहा जगह, पिछले 10 साल से मिल नहीं रहा है, 12 साल से। Which brings me back to the next question. जैसे आपने बताया कि what should government do if you are, let's bring in some Nayak stuff. If you are a CM or a PM for a day, I am happy with what I am. no, just one thing that you would do, the first thing you would do, or the thing that you want to change about something. If you are a CM or a PM, what would that be? I think ease of doing business. Because right now अपने कंट्री में one of the highest inflation rate सबसे ज़्यादा है, unemployment सबसे ज़्यादा है. Unemployment, people are not talking about unemployment. There are people who are getting graduate who don't understand कि उनका इंडस्ट्री में लगने वाला एजुकेशन आज स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं मिल रहा है. Like there was a time कि आपको 80-85% मिला. This I'm talking about like 15, 20, 25 years ago. Then you could easily get admission in science. You could go to engineering and become a doctor. 70-75 मिला तो you could go to commerce and work in different फिर वो banks. इंजीनियरिंग से बीएससी पे आता है. Correct. इंजीनियरिंग तो बीएससी कर लूंगा. Correct. सीए नहीं तो फिर एटलीस्ट बीकॉम एमकॉम कर लूंगा. Exactly. And हमारे जैसे 35 वाले रहेंगे 35% तो आर्ट्स है. आप 35 वाले तो नहीं है, आप यूएस जाके पढ़ाई करके आए हो. आई मीन आई डोंट US थिंक का 35 यहाँ का 100 है ना भाई. नहीं मैं I enjoy learning things. अच्छा. I don't really care about percentages. मेरे को नॉलेज में ज़्यादा ये सब इंटरेस्ट लोग है. सीख जाओ. आई मीन इट्स ऑल अबाउट लर्निंग. इट्स नॉट अबाउट हाउ मनी लाइक हाउ मच मार्क्स यू स्कोर. पीपल कीप सेइंग इट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. माँ बाप जो भी लोग देख engineering रहे we हैं. scored, but what we learned creative comedy. हाँ. So And yeah, you're successful. Yeah, 100%. I'm just we are trying. We are not yet there yet, but yeah. Maybe someday. So, one of my professors in Harvard always said that instead of asking jobs, create jobs. And if you want to create jobs, you need to have some sort of business. जो मैंने पहले बोला कि इतने सारे लाइसेंस राज जो चालू है, why would any common man want to do a business? So there are no job creations because people don't want to get into that jamila of licenses and whatnot. So I think if I had the power, ease of doing business, सब ब्यूरोक्रेसी निकाल के प्रो बिजनेस पॉलिसीज कैसे बन पाएगी. Like I was really happy when the government initially had did this campaign called Make in India, and I'd visited the exhibition in BKC. The exhibition was beautiful, but there was no one window clearance system. So if I want to set up an industry, let's say textile industry में मुझे डालना है, तो कौन से जोन में वो इंडस्ट्री नहीं मांगती है, तो डी जोन. अभी डी जोन इज ओनली इन वाड़ा. इफ आई वांट टू पुट दैट इंडस्ट्री इन वसई तो मेरे को बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. तो पहले तो मुझे वाड़ा में जगह ढूंढना है. उधर बहुत सारे आदिवासी लैंड है, तो वो सब रूल्स रेगुलेशंस में मनूवर करके पहले तो जगह लानी है, फिर इंडस्ट्री डालनी है, उसके लिए लगने वाले इतने सारे लाइसेंसेस है. आई डोंट वांट टू गो टू वाड़ा एंड पुट दैट इंडस्ट्री. तो गिव अप हो जाता है. तो इतना बड़ा प्रोसेस है ऐसे ही. शुरू होने से पहले आदमी हिम्मत हार जाता है. बट आई एम श्योर जस्ट द वे यू सेड के यू हैड एम्बिशंस कि मैं विरार में इतना कुछ कर सकता हूँ. वेल व्हेन कमिंग टू यूएस यू हैड अ रिस्ट्रिक्शन बॉक्स. इट्स अ क्वेश्चन. ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई कर नहीं पा रहा है, शायद उनके भी अपने रिस्ट्रिक्शंस हो. नोबडी वांट्स के 40 लाइसेंसेस हो, पर हो सकता है शायद उधर भी कुछ होता होगा. नहीं वैसे नहीं. जो मैंने पहले बोला कि किसने तो भी एक जन ने गलती की तो उसको सजा नहीं मिली है. बाकी कोई वो गलती ना करे इसलिए एक नया नियम बनाए. जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट. Exactly. अब वो उन लोग दे कांट गो बैक ऑन दैट करेक्ट. एंड दैट इज क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम. एग्जैक्टली. सो दैट्स अ विशियस सर्कल. होना क्या चाहिए, जिसने गलती की उसको आप सजा दो. बी वेरी स्ट्रिक्ट कि ये अगर इसने अमुक इंडस्ट्री ले या डेवलपर ने या जो भी कंपनी ने अगर चोरी की है तो मेक श्योर दैट ही सफर्स, ही गोज टू जेल, हार्डशिप हो. लेकिन वो चोरी बाकी के लोग नहीं करेंगे इसलिए आपने 4 अलग अलग लॉज इंप्लीमेंट कर डाले, विच इज नॉट द सोल्यूशन. इसको कुछ हुआ नहीं, बाकी सबको सफरिंग दे दिया आपने. दैट इज नॉट द राइट सोल्यूशन. और जैसे मैं आपका वो इंटरव्यू में देख रहा था कि पानी का जो प्रॉब्लम होता है, so it is not easy के मतलब कहीं नया प्रोजेक्ट आ गया तो उसको पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन इस सब में टाइम लगता है. इट्स नॉट के भाई बिल्डिंग खड़ा किया आ गया. सो जैसे ग्लोबल सिटी आपने बताया कि इट इज बिल्डर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक रोड्स एंड व्हाट नॉट, बट द परमिशन, जैसे एक बिल्डिंग है उसमें पानी नहीं आ रहा है और अगर कैपेसिटी नहीं है किसी स्टेट या सिटी का उसको पानी देने का, सो हाउ इज इट अलाउड ओनली टू बिल्ड दैट कंस्ट्रक्शन? I completely agree, and I am completely against giving this additional FSIs every 5 years. अभी मुंबई में in special projects there is FSI up to 8 times आपको
कंस्ट्रक्शन कर सकते हो आप. Sorry, मैं समझा नहीं, but can you just elaborate a bit? So more? let's say if you have 10,000 square feet of land, one FSI is you can build 10,000 square feet in that piece of land. Okay. So 10,000 square feet में आप हजार फुट के 10 अपार्टमेंट्स बना डालो Correct. या 500 फुट के 20 अपार्टमेंट 20 बनाओ. बनाते हैं, yes. But total construction area is 10,000 square feet. Correct. For ease of calculation, special प्रोजेक्ट्स के लिए मुंबई में अप टू 8 FSI मतलब 10,000 स्क्वायर फीट पे आप 80,000 स्क्वायर फीट बना सकते हो. एंड एवरी 5 years में गवर्नमेंट नए नए FSI बढ़ाते जा रहे हैं अलग अलग एरियाज में. अच्छा. मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी एक्सपैंड नहीं कर सकते, सैचुरेट हो गया है. मतलब आपको अगर हाईवे एक्सपैंड करने का है, आजू बाजू में दोनों जगह पे कंस्ट्रक्शन है, आप हाईवे बड़ा नहीं कर सकते. मेट्रो जो आपने लाया है वो हाईवे के बीचों बीच पिलर्स डाल के लाया है. अभी आप कोस्टल रोड बना रहे हो, कितनी बार कोस्टल रोड बनेंगे? द ईजीएस्ट एंड द बेस्ट वेज जो चाइना ने किया था, दे मेड सैटेलाइट सिटीज आउटस्कर्ट्स में, बिटवीन नोवेयर. प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाए, ऑफिस स्पेसेस बनाए, स्कूल्स कॉलेजेस बनाए, ये आउटस्कर्ट्स में पूरे सिटीज़ बनाए. हम क्या देख रहे हैं, मुंबई में अभी कंस्ट्रक्शन का जगह बचा नहीं है तो रीडेवलपमेंट के लिए 5 FSI दे दो, स्पेशल प्रोजेक्ट है 8 FSI दे दो. वो लोग रास्ते से लेके, पानी से लेके, पावर से लेके, ऑल ऑफ दीज थिंग्स सस्टेन हो ही नहीं पाएगा अनलेस वी क्रिएट दीज सैटेलाइट सिटीज़. आज अपने कंट्री में टूरिज्म इज गोइंग टू द मॉल एंड वॉचिंग अ मूवी. दैट इज आवर टूरिज्म. You see Singapore. It was a dumping ground for Malaysia. मलेशिया का पूरा कचरा सिंगापुर में डंप होने का. 60 years में सिंगापुर has become the financial center of the world. 60 years में. वो टूरिज्म मैंने भी एक आई डोंट नो इट वाज अ रूमर और समथिंग मैंने सुना था दैट यू गाइस आर एनविजनिंग अपना जो कोस्टल पार्ट है पूरा पालघर से वसई का टू मेक इट अ गुड टूरिज्म स्पॉट. मे बी कुड बी समथिंग लाइक गोवा और समथिंग. Yes. तो ये रूमर था या वाज इट प्लान्ड और आर वी नहीं. स्टिल प्लानिंग? We are still planning. CRZ, Coastal Regulatory Zone, मतलब सबसे स्ट्रिक्ट CRZ is by the coast. सो कोस्ट को लग के कुछ भी डेवलप करने का रहेगा तो उसका अप्रूवल परमिशन में अपन अटक जाते. अप्रूवल सब जगह, State अप्रूवल government. एवरीवेयर इज अप्रूवल. मतलब हमको भी ब्रांड वीडियो डालना है, बहुत अप्रूवल लगता है. बहुत अभी आप मेरे को बोलो कि जो मरीन ड्राइव हम देखते हैं वो ब्रिटिश के टाइम पे बना था. उसके बाद में मेरे को नया मरीन ड्राइव दिखाओ आप, तो उनके टाइम पे अप्रूवल परमिशंस नहीं थे. आज अपने को CRZ से लेके सब अप्रूवल परमिशंस के लिए घुमा डालते हैं. इलीगल कंस्ट्रक्शन करने का है, आप समुद्र के बाजू में इलीगल कंस्ट्रक्शन कर डालो. लेकिन लोगों के लिए अगर उधर पाथवे करने का रहेगा, मतलब वी हैव अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन Yeah, राइट 100%, फ्रॉम I mean, अरनाला से we love लेके it. ऑल द वे टिल नायगांव, वसई, पाचू बंदर, किला बंदर. मतलब इतना बड़ा मरीन ड्राइव हो सकता है लेकिन अप्रूवल परमिशंस नहीं मिलता है. इफ यू क्रिएट दैट ट्रैक राइट फ्रॉम अरनाला से लेके ऑल द वे टिल नायगांव, yes. वसई, कहाँ तक जा सकता किला वगैरह, सबसे बड़ा मरीन ड्राइव बनेगा अप्रूवल परमिशन में. तो जो मैंने बोला कि इच्छा तो बहुत है लेकिन वो फ्रेमवर्क के बाहर यू कैन नॉट डू एनीथिंग. अभी बाहर लाइक 1/3 ऑफ सिंगापुर इज रिक्लेम्ड. बाय आई मीन इट्स रिक्लेम, मतलब समुद्र में मट्टी भरनी कर करके 1/3 ऑफ द एंटायर कंट्री इज रिक्लेम्ड फ्रॉम द सी. दुबई इज रिक्लेम्ड. तो उधर CRZ नहीं लगता है, हमारे यहाँ पे CRZ लगता है. So suppose I am a builder, let's say I want to construct a building in Virar. So whose permission do I need? I mean, Municipal corporation. municipal. That is one. That's an easier answer. Abhi now we're building we've already got approval for SRA and which is slum development and cluster development. तो 3 square meters इतने बारकाई से ड्रोन सर्वे पूरे वसई तालुका का हो गया है. किधर किधर बैठे चाल है, किधर किधर लोड बेरिंग है, ये सब प्लान पे बैठा डाला है. वो क्लस्टर्स आपको अगर डेवलप करने रहेंगे तो SRA का परमिशन लगेगा, क्लस्टर डेवलपमेंट का परमिशन लगेगा. सो दीज आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जिधर अलग अलग अप्रूवल्स लगेगा. बट जनरली ओपन स्पेस है, आपको परमिशन मांगता है तो जनरली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. तो तब उसके मतलब- आगे फिर अगर एक सर्टन साइज के ऊपर प्रोजेक्ट है तो आपको एनवायरमेंट जाना पड़ेगा, विच गोज टू मंत्रालय. नहीं मतलब सपोज मैं उसमें भी अगर है बहुत सारे. 25 लोग का मैंने बिल्डिंग बांधा है और 25 लोग मतलब 25 फ्लैट. 25 अपार्टमेंट है फॉर एग्जांपल. तो 25 अपार्टमेंट के लिए जो मुझे इलेक्ट्रिसिटी पानी चाहिए तो वो पहले अप्रूव होता है फिर ही बिल्डिंग बांधते होंगे ना, या नहीं, पहले आर्किटेक्ट आपका प्लान बना के देगा, फिर लाइजनिंग आर्किटेक्ट, मतलब पहले तो डिजाइन आर्किटेक्ट आपका प्लान बनाएगा, फिर लाइजनिंग आर्किटेक्ट वो प्लान
अप्रूवल प्रोसेस में बैठता है कि नहीं बैठता है वो देखेगा, उसमें चेंजेस करेगा एंड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से अप्रूव करा के लाएगा। अगर एक सर्टन साइज के ऊपर है तो आपको एनवायरनमेंट का अप्रूवल्स लगेगा, वो फिर अलग डिपार्टमेंट। सो ऐसा मल्टीपल डिपार्टमेंट, फायर का आपको एनओसीज लगेगा, फायर डिपार्टमेंट। मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने बहुत बिल्डर्स को देखा जो बिल्डिंग बांध देते फिर पानी के लिए फाइट करते हैं, रादर इट शुड बी द अदर वे अराउंड, व्हेन यू हैव वाटर सप्लाई, व्हेन यू हैव इलेक्ट्रिसिटी, फिर ही बिल्डिंग बांधो। MACB इज अंडर स्टेट गवर्नमेंट। तो जो मैं बोल रहा हूँ कि इतने अलग अलग लोगों से डील क्यों करना है? वन विंडो सिस्टम, यू पे वन विंडो, दीज आर द चार्जेस एंड यू गेट ऑल दी अप्रूवल्स। क्योंकि बिल्डिंग बना रहा हो तो फायर एनओसी अलग जगह पे जाओ, एनवायरनमेंट दूसरी जगह पे जाओ, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अलग परमिशंस लेने के लिए जाओ, MACB का स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है मीटर्स और ये सब देने के लिए। सो व्हाई हैव ऑल ऑफ दीज, व्हाई डज अ पर्सन हैव टू गो टू 15 डिफरेंट 10 प्लेसेस? different places, yes. है वन विंडो सिस्टम। जो आपको भरने का है, लेने का, देने का, वो वन विंडो में अप्रूवल्स लो, वन विंडो में आप सारे फीस भरो, लेट दैट डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट व्हाटएवर चार्जेस टू एग्जैक्टली। मतलब जो कर रहा है उसको 10 जगह मत भेजो। Exactly. मैं आपके पास ही आऊंगा, आप वो अपनी टीम बढ़ाओ ना। हाँ। Now that's your job कि आप अपने सब कंपार्टमेंट को सब देते रहो। So I'll come back to the beaches because मेरे को विरार के बीचेस से बहुत प्यार है। बीचेस बोला ना? मैंने बीचेस बोला। ठीक है। मैंने बीचेस बोला अच्छे से, मैंने ध्यान से बीचेस बोला। So I'll come back to the beaches. So मैं ना, मेरे दिमाग में बहुत थॉट बहुत पहले से आया था। So I shifted to विरार in 2013. तो ग्लोबल सिटी 2008 से बन रहा था, मैं ग्लोबल सिटी में रहता था। तो मुझे बहुत लेमन जैसा एक क्वेश्चन है, मुझे समझना था जेन्युइनली। सो विरार, द लास्ट प्लेस ऑफ मुंबई इज दहीसर, विच इज लाइक यहाँ से 40 किलोमीटर है। एंड उसके बाद आता है थाने डिस्ट्रिक्ट जो भाईंदर है, भाईंदर यहाँ से 20-25 किलोमीटर होगा। तो मुंबई भाईंदर यहाँ पे मतलब कभी इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, इट्स 24/7 एंड पानी भी 24/7 है। सो आई मीन विद इन जस्ट 20-25 किलोमीटर्स, मतलब इतना चेंज कैसे होता है? विरार में कभी कभी आई गेस फ्राइडे को लोड शेडिंग होता है बिकॉज ऑफ, आई मीन मेरे ख्याल से कंपनीज की वजह से। सो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मतलब just the 25-30 kilometers makes a huge difference. मतलब what's the actual process and why is this basically? नहीं, वाटर सप्लाई 24/7 मीरा भाईंदर वगैरह में नहीं है। हाँ शायद नहीं There होगा। is Maybe that's- water shortage more than वसई विरार इन मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर, अच्छा। G+4 के ऊपर के तो आपने रिसेंटली न्यूज में देखा रहेगा कि वाटर सप्लाई बंद किया है। G+4 के बिल्डिंग के ऊपर का वाटर सप्लाई मीरा भाईंदर ने बंद किया है। ओह। सो दे नॉट गिविंग एनी मोर कनेक्शंस। परमिशन उन्होंने दिया कि बांधो, परमिशन उन्होंने दिया और बंद फिर करो। उन्होंने ही रोक लिया कि 5 के ऊपर क्यों बांधा, पानी नहीं है। एग्जैक्टली। तो वसई विरार एज ऑफ टुडे पानी का शॉर्टेज नहीं है। 41 करोड़ लीटर्स का वाटर सप्लाई हर रोज विरार में आ रहा है। 41 करोड़ लीटर Just the Virar or the belt? वसई तालुका, Well, वसई yeah. तालुका, आई एम टॉकिंग अबाउट वसई द तालुका, वसई yeah. तालुका। फिर भी 41 सफिशिएंट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? इट इज सफिशिएंट। ओल्डर स्कीम्स के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन था वो कम कैपेसिटी का था। जैसे जैसे ये स्कीम्स बढ़ते गए, सो व्हेन 90s के पहले द वाटर सप्लाई दैट द एंटायर वसई तालुका यूज्ड टू गेट वाज 70 लाख लीटर्स। टुडे इट इज गॉन अप टू 41 करोड़ लीटर्स अ डे। अ डे। 41 करोड़ लीटर्स इज अ लॉट ऑफ वाटर। तो नए नए पाइपलाइंस डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सिटी के हिसाब से काम चालू है। अभी ग्लोबल सिटी का जो आप रहते थे, पुराने लेआउट जो FSI का, कमिंग बैक टू द एडिशनल FSI, G+7 के पुराने बिल्डिंग्स थे, ये आपको ध्यान में है, द ब्राउन एंड बेज बिल्डिंग्स। तो द पूरा लेआउट का जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का पाइपलाइन डाला था वो G+7 के हिसाब से डाला था। गवर्नमेंट चेंज हुआ, FSI बढ़ गया, 14 स्टोरी एंड 22 स्टोरी के टावर्स आने चालू हो गए। Yeah. तो पॉपुलेशन डेंसिटी विद इन दैट छोटा एरिया बहुत बढ़ गया। अभी डिस्ट्रीब्यूशन के पाइपलाइन तो आपके पुराने थे, तो 22 स्टोरी एंड 14 स्टोरी के बिल्डिंग के लिए वो पूरा change पाइपलाइन करना पड़ेगा। सफिशिएंट है ही नहीं। तो इसलिए पहले आपका लेआउट का पुराना टाकी was 10 लाख लीटर्स अ डे, बाजू में नया टाकी बना के लिया, तो द टोटल कैपेसिटी नाउ फॉर द एंटायर ग्लोबल सिटी इज 38 लाख लीटर्स पर डे। तो उधर भी वाटर इज नॉट अ प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉब्लम। तो वो भी आपके सब जो एवेन्यूज है उधर मीटिंग लिया, उनको बोला कि ऐसे ऐसे आप रेक्टिफाई करोगे तो 38 लाख लीटर तो हर रोज पानी आ रहा है, आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि पाइपलाइन चेंज करने पड़ेंगे। सो ये इश्यूज ये आते हैं। रेलवे को लग के जो पुराना रेजिडेंस है, दे हैव नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो पुराना जो पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन था उसका कैपेसिटी इज मोर देन और इनफ। वैसा का वैसा वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए। चेंजेस नहीं किया है। ये सब नए पाइपलाइंस का किधर हो रहा है? जैसे जैसे सिटी बढ़ रहा है, तो जब तक वो नए कंस्ट्रक्शन की इधर पाइपलाइन पहुंचेगा नहीं तो पानी किधर से? तो जैसे आपने बोला कि गवर्नमेंट चेंज हुआ 7 के बाद 14 का, तो ये
मतलब which government was it? Municipal और द स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट से FSI जो आता है। बढ़ाने का काम हर गवर्नमेंट ने किया है, मतलब इट इज नॉट अ वन पर्टिकुलर गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले FSI बढ़ाते हैं. So if I am a builder in Virar, I have a 7th floor building. I want to make it 14. So this is not in your control. I have to नहीं. take access from state government. नहीं, बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट विल से कि मुंबई में आज इतना FSI इज परमिसिबल, देन द अप्रूवल प्रोसेस गोज टू द मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. Municipal. And they have to approve अगर they उसने have to बोला है approve. तो. They have to approve. So my thought process was कि instead of raising these FSI every 5 years for residential, we should not do that. Raise FSI for all the social causes. So आपको स्कूल बनाना है, मैक्सिमम FSI दो. आपको हॉस्पिटल बनाने का है, मैक्सिमम FSI दो. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिलेटेड कुछ रहेगा, इंडस्ट्री है, ऑफिस स्पेसेस है, रिटेल स्पेसेस है, मैक्सिमम FSI दो. उसमें जॉब क्रिएशन होएगा. रेजिडेंशियल FSI आप बढ़ा के लाइबिलिटी डाल रहे हो वो सिटीज में. इट डज नॉट हेल्प एनीबडी. नाइदर इट हेल्प्स द पीपल हु आर बाइंग दोज अपार्टमेंट्स, क्योंकि दे हैव टू ट्रैवल समवेयर एल्स फॉर जॉब्स. तो उनका भी लॉन्ग रन में फायदा नहीं है. Builders and construction भी actually ऐसा atmosphere बना रहे हैं where they are creating an agenda के everybody wants to buy a new home, shift to a bigger home or a bigger society, जिसकी वजह से people are choosing to shift में भी, जिसकी वजह से डिमांड भी बढ़ रहा है ना. अगर वो एजेंडा ही नहीं होता कि भाई छोटे घर में रहो, अपार्टमेंट में रहो, बट नहीं, सबको आजकल नए घरों में शिफ्ट होना है, बिगर अपार्टमेंट्स, बिगर The bliss. प्लेस, तो शायद उसकी वजह से भी तो ये चल रहा है ना. मतलब दैट इज हाउ इट इज सीडेड मे बी. मैंने तो यही सोच के लिया था. मैं खुद फंस गया उसमें. So the point that we were discussing global city का, तो कि मतलब बाद में अभी लोगों ने बढ़ा दिया है 14-22 माले का कर दिया तो अभी पानी जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब सोल्यूशन इज ऑलरेडी सब एवेन्यूज का मीटिंग लिया. नहीं नहीं वैसा नहीं, मतलब जैसे अभी 14 का है, अभी क्या पता बाद में 10 साल बाद वो 50 माले की भी बना देंगे, तो ये तो चालू हो गया है. नो चालू हो गया है. स्टॉपेज टू इट. तो इसका मतलब पहले से ही बोलते हैं ना कि ये रूल है भाई, तुम अभी करो, तुम 100 साल बाद करो, मतलब ताकि तुम्हारे तक पानी पहुंच पाए. So what do you think is the solution to this? I mean, One of the solutions is restricting FSI in terms of residential. Yeah. Second solution is the difference between India and China. And हमको ये केस स्टडी था जब मैं पढ़ रहा था तब. The difference between India and China is China का development is future based. India का development is need based. past based. मतलब आप आज एक बिल्डिंग करने जा रहे हो तो वो बिल्डिंग में कितने रहने वाले हैं, तो 9 मीटर का रोड डलवा दो. 10 साल में एक बिल्डिंग का 50 बिल्डिंग हो जाता है, तो वो 9 मीटर का रोड कम पड़ने लगता है. यार अभी आप सोचो टाउन में जो आपने रास्ते देखे, मतलब मरीन ड्राइव ले लो, कितने साल पुराना ब्रिटिशर्स ने वो रोड किया था. इट सस्टेन्ड फॉर मोर देन 150 ईयर्स. इतना पुराना वो प्लानिंग है, 150 ईयर्स ओल्ड. JJ, KEM, सेंट जॉर्ज, ये जो सब हॉस्पिटल्स बनाए, ये ब्रिटिश कालीन के हॉस्पिटल्स हैं. आज भी मुंबई को ये हॉस्पिटल सस्टेन कर रहे हैं. यू नेम हाउ मेनी न्यू हॉस्पिटल्स इन मुंबई? प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत आए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स. वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ वेयर द सिटीज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज हेडिंग टूवर्ड्स, और वो लाइन्स पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो वील बी एबल टू क्रिएट अ बेटर लाइफस्टाइल फॉर द रेजिडेंट्स. मरीन ड्राइव का आज फुटपाथ कितना बड़ा है? बहुत उतने बड़े तो रोड्स नहीं है. That is right. द फुटपाथ इज मैसिव. Huge. And this was designed 150 years old. DP बनता है, डेवलपमेंट प्लान बनता है once every 25 years. It should evolve every 3 to 4 years depending on कौन से एरिया में क्या डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बढ़ने वाला है. ये प्रोजेक्शंस करके every couple of years वो चेंज होना मांगता है, इवॉल्व होना मांगता है. करेक्ट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा DP हर 3 साल में बदल दो, बट सर्टन पॉकेट्स जिधर जिधर ट्रेंड्स दिख रहे हैं उधर वो इवॉल्व होना चाहिए. 25 साल में एक बार DP बनता है. कैसे मतलब 25 साल में तो चेंज हो गया. ट्रेंड आजकल 6 महीने में चेंज होता है, 3 महीने में चेंज हो रहा है. करेक्ट. So what is your plan for मतलब a lot of people ask me where do you see Virar in 5 years or 10 years? Virar Yeah. Vasai. Where do you see Virar Vasai in 10 years? So one of the ambitious projects that we are working on right now, and उसका सर्वे भी हो गया है, जो मैंने बोला कि the eastern belt जिधर बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है. So फॉरेस्ट में बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, आदिवासी लैंड पे बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ, रिजर्वेशन लैंड्स एनक्रोच हो गए, एंड ये सारे गरीब लोग हैं. तो हाउ कैन वी क्रिएट a better lifestyle for those people
मतलब वेस्ट में आप ग्लोबल सिटी रहते इफ आई हो, एम नॉट रॉन्ग तो जो ईस्ट पार्ट है नालासोपारा विरार का बहुत क्लस्टर्ड भी है, मतलब कहीं से भी बिल्डिंग कैसा भी, मतलब एक बिल्डिंग ऐसा तो एक उसके आजू में ऐसा एक, Correct, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट यू ट्राइंग टू से। करेक्ट, बिकॉज ये एसआरए और क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रूव हो गया है, सर्वे हो गया है, उसका सुपर इम्पोज हो गया है, पूरा प्लान का उसके क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हो गए कि किधर किधर बैठे चाल है, किधर किधर लोड बेरिंग है, बिकॉज द बैठे चाल हैज डिफरेंट नॉर्म्स, लोड बेरिंग हैज डिफरेंट नॉर्म्स, तो दैट विल गो अंडर क्लस्टर, द बैठे चाल विल गो अंडर एसआरए, तो वो क्लस्टर्स आइडेंटिफाई हो गए, जोन्स आइडेंटिफाई हो गए, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रमोट द लोकल्स कि ये सारे क्लस्टर्स आप डेवलपमेंट के हिसाब से करो, instead of getting all these बाहर का developers and built these SRA projects, मैं तो अपील करता हूँ लोकल लोगों ने ये ग्रुप्स बनाओ, या स्पेशली द यंगस्टर्स, इसमें यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द कंजेशन प्रॉब्लम फॉर ऑल दीज पुअर पीपल। कोई तो भी आरटीआई डालता है और इनके बेचारों के घर टूटते हैं विद नो फॉल्ट ऑफ देयर्स, उनका गलती कुछ नहीं, उनको भी लोगों ने फंसा है, करेक्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन बेच के बोल के कि सिडको अप्रूव्ड है, पहले सिडको था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो अभी बना, बट सिडको का गलत सलत पेपर दिखा के कि ये सिडको अप्रूव्ड है वगैरह, तो उनको भी फंसा है लोगों ने। उनको अच्छे पक्के मकान मिलेंगे, लीगल मकान मिलेंगे, तो उनका जो लटकती तलवार सर की है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा, what I'm trying to promote is form like these youngsters should come ahead and do these development projects instead of getting some developer from outside. People पूछते हैं कि फिर पैसा किधर से आएगा, तो थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में अपना इलेक्टेड बॉडी बैठा है, तो उधर पॉलिसी पास करने के लिए है कि अगर ये सेल्फ डेवलपमेंट कोई भी ये क्लस्टर्स करते हैं तो लोन टीडीसी थाने डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से अवेलेबल करके देंगे हम, एंड दिस इज चीपर दैन द नेशनल बैंक्स एंड द प्राइवेट बैंक्स, तो अफोर्डेबल रेट में आपको लोन भी उपलब्ध होएगा। देयर इज डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी इन दीज प्रोजेक्ट्स। एक आदमी का काम नहीं है, एक आदमी पूरा वसई तालुका रीडेवलप नहीं कर सकता है। जितने ज़्यादा यंगस्टर्स जुड़ेंगे और ये प्रोजेक्ट लेंगे, उतना फास्ट ये अपना पूरा जो ईस्टर्न बेल्ट का पिक्चर है वो चेंज होएगा। So that is one of the projects that we are working on, and I'm really working hard towards getting this. Once the election and everything is over, everybody is busy with elections. तो एक बार ये होने के बाद वो clusters का meetings लेके how can we get this rolling as soon as possible? क्योंकि I understand, मैं घर पे और ऑफिस में नहीं बैठा, I am within the field. तो I understand their problems and challenges that these people face. उनके साथ भी cheating हुआ है, तो ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट हम सोच रहे हैं कि ये कैसे हम एग्जीक्यूट कर पाए। एंड जैसे लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम विरार ट्रैवल टू बॉम्बे फॉर जॉब्स, जैसे अपने यहाँ पे मे बी देयर आर नॉट जॉब अपॉर्चुनिटीज, अब जैसे ब्रांड भी कोई इधर खुलता है तो वी सी दैट देयर इज नॉट अ ग्रेट स्पेंडिंग पावर, जिसकी वजह से बड़े ब्रांड्स नहीं आ पाते, विच एवरीबॉडी, हर विरार वाले को चाहिए कि ये खुल जाए वो खुल जाए, बट द प्रॉब्लम इज कि वो शायद नहीं चल रहा है इसलिए नहीं खुल रहा है। सो हाउ डू वी चेंज दैट, हाउ डू वी गेट ब्रांड्स, हाउ डू वी गेट अ मॉल हियर, वी डोंट हैव टू गो टू town to see something or to have fun. Employment generation, so जो मैंने वो salt pan का बोला, that was one project where lot of employment would have been generated. मतलब hospital से लेके everything would have created multiple jobs in different sectors. वो जगह अपने को अब तक मिला नहीं। एक मिसकंसेप्शन या परसेप्शन है मुंबई के लोगों का कि वसई विरार इज गांव खेड़ा, like we are still snake charmers in वसई विरार and there's nothing in. Yes. यार बहुत सारे लोग को तो पता भी नहीं वसई विरार आता क्या है, मतलब कितने वो लोग को लगता है कि महाराष्ट्र के बाहर गुजरात पहुंच जाएंगे, स्टफ लाइक दैट। आई मीन आई नो वी हियर दैट, we whenever we get time we keep promoting वसई विरार। अभी हमने वो जैसे आप बताया ना कि there is a problem to travel in train because of, but still we choose to travel in train, in AC trains, we promote local trains because it's the best way to travel. Correct. I mean, why would I suffer 2.5 hours through highway which is with traffic, rather if I can go, we cover ourselves and we क्रिएट फनी कंटेंट भी उसके अराउंड ताकि प्रमोट हो एसी लोकल। कितने लोग तो गाली मार रहे हैं तुम्हारी वजह से एसी लोकल में गर्दी होने लग गया है। नहीं, सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में देयर वाज अ परसेप्शन विद ऑल दीज बिग कंपनीज कि वसई विरार में पहली बात तो इंटरनेट नहीं है, दूसरी बार पावर बार बार जाता है, तीसरा टैलेंट नहीं है। सो वी गॉट 2 कंपनीज विद इन द कॉलेज कैंपस। टैलेंट तो है, देखो टैलेंट तो हमारे सामने है, ये मिसकंसेप्शन तो दूर हो जाना चाहिए अभी तक। सो एक बीपीओ केपीओ लाया, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, इट्स अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो ही वाज गोइंग टू ओपन हिज बीपीओ केपीओ इन एनसीआर एंड पटना। सो आई मेट हिम एंड आई रिक्वेस्टेड कि प्लीज विजिट वसई विरार, जस्ट हैव अ लुक, आप देखो कि ये आपके लिए परफेक्ट जगह है, इट इज़ क्लोज टू मुंबई एंड आपको सब मिलेगा।
So he was like, I'll send my CEO, let him come first, उनको देखने दो, and then second meeting के लिए I will come. तो बोला नहीं, first meeting you come, after that you send whoever employee you want, I have no problem. And I made sure that he was present. The owner was present in Virar for the first meeting. प्रॉब्लम क्या होता है, अगर CEO आता था ना तो वो खुद का कन्वीनियंस देखता था, वो कंपनी का बेनिफिट नहीं देखता था. वसई विरार में अट्रीशन रेट, बीपीओ केपीओ, आप माइंड स्पेस देख लो, आइरोली में देख लो, तो अट्रीशन बाजू वाले ने 500 रुपये दे दिया तो एम्प्लॉय छोड़ के निकल गया. तो वो 6 महीने का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, यू आर बेसिकली पेइंग फॉर समबडी एल्सेस एम्प्लॉय. तो अट्रीशन रेट 0, क्योंकि इधर से छोड़ के जाएगा किधर? ही इज नॉट गोइंग टू ट्रैवल 1.5 hours बाय ट्रेन यहाँ हो तो टू मुंबई. तो उसको मैंने ओनर को वो समझाया कि तुम्हारा अट्रीशन रेट कम हो जाएगा, आपको मुंबई में 30-35 हज़ार सैलरी है ना, इधर 20 हज़ार में वो काम करेगा. ही विल सी कि घर के बाजू में नौकरी है, मुंबई जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा. करेक्ट. तो आपका कॉस्ट सेविंग हो गया सैलरी में. Absolutely. जो रेंट आप मुंबई में भर रहे हो, इधर तो फोकट में जगह दे रहा हूँ मैं, तो आपको तो 2 पैसा देने का जरूरत नहीं है. बिकॉज आई वांटेड टू मेक श्योर दैट कंपनीज आए, एक्सपीरियंस करें, ताकि आई कैन यूज देम टू शो अदर कंपनीज की ये चल रहा है तो आप क्यों नहीं आ सकते. तो इट वाज अ विन-विन सिचुएशन फॉर हिम एज वेल एज मी एज वेल एज फॉर द पीपल ऑफ वसई विरार. तो एज ऑफ टुडे वो बीपीओ केपीओ में अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोग काम कर रहे हैं. वो 3 शिफ्ट में धीरे धीरे बढ़ाएंगे, तो 3,500 पीपल विल वर्क इन दैट वन कंपनी. दूसरा कंपनी लाया जो एक अमेरिकन कंपनी है, हमारे ही इज एज गुड एज फैमिली, इज लाइक माई एल्डर ब्रदर, बीन विद द फैमिली फॉर एजेस नाउ. तो वो कंपनी इज अ टेक कंपनी. आज वॉलमार्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है, राइट, उसका दुनिया का डेटा इज मैनेज्ड ऑन हिज प्लेटफॉर्म. इट्स अ टेक कंपनी. एयरबीएनबी जो सबसे बड़ा होटल चेन जो जिसको बोला जाता है, इज हिज कस्टमर. बर्बरी से लेके, शेल से लेके, एयरबीएनबी से लेके, ऐसे बड़े बड़े फॉर्च्यून 5, एप्पल हेल्थ का एक प्रोसेस इज मैनेज्ड ऑन हिज प्लेटफॉर्म. रोलेक्स इज मैनेज्ड ऑन हिज प्लेटफॉर्म. तो ऑल फॉर्च्यून 500 कंपनीज आर हिज कस्टमर. एक भी इंडियन कस्टमर नहीं उसका. उसका साल में डाउन टाइम कैन बी ओनली 20 सेकेंड्स. पूरे साल में अगर 20 सेकेंड के ऊपर वो जा नहीं सकता डाउन टाइम. तो इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, पावर का प्रॉब्लम नहीं है, टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसका पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट 90-95% हैपेंस इन अ प्लेस लाइक विरार. And the highest paid guy in Virar is 2.5 crore salary. So these employees are hired from Virar Vasai? Vasai Virar, locals. 90% of the employees are locals. जैसे आपने बताया एक पैकेज है 2.5 करोड़ का. So that guy is from Virar Vasai? Virar. Wow, amazing. He's from Virar. I will obviously not name him. नहीं, obviously, but बाद में आराम से पीछे से बताना. After the मुझे जानना है, क्यूरियोसिटी. So वो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्रिएट किया कि एक बीपीओ केपीओ में 8-10,000 से सैलरी चालू होता है, एंड द अदर साइड 2.5 करोड़ तक भी आपको सैलरी मिल सकता है. और ये 2 कंपनीज लाया भी जिद पे लाया था कि जो परसेप्शन मुंबई की कंपनीज को है कि इधर नहीं है, टैलेंट नहीं है, इंटरनेट नहीं है, पावर नहीं है, वो ये 2 कंपनीज है, दे आर बीन ऑपरेटिंग प्रॉपरली फॉर लास्ट 2.5-3 years. तो आप मुझे ये मत बोलो कि टैलेंट नहीं है, पावर नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सब है. अभी आप बोलो कि आपको मेरे से सपोर्ट क्या मांगता है, आई विल गो आउट ऑफ द वे टू मेक श्योर कि एम्प्लॉय जनरेशन यहाँ पे हो. उस पे से आई वुड रेकमेंड यू टू यू ऑल्सो सेट अप ओवर हियर समथिंग, द क्रिएटर्स. So when we moved, the primary reason for us to move to Malad was because पूरा ecosystem वहाँ है. So whenever if we want to do meetings or something, we'll have to travel. And धीरे धीरे हम जब 1-2 दिन travel करते थे week में, so it was not a problem. We used to travel, we used to have fun because we love Virar. We are from Virar. But then वो travel इतना frequent हो गया that we had to shift to grow. But हमने एक बार बैठ के किया भी था कि why can't we create a ecosystem here? And then that's what you said कि I'll support you to create a ecosystem here, and we would obviously love to. Why not? अगर Why not? Film city, like Bollywood. Lot of people try to move Bollywood to different states. Everybody failed क्योंकि culture create हो गया था. Correct. तो अभी रामोजी राव स्टूडियो हैदराबाद में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बट नोबडी मूव फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद. यूपी दे वर ट्राइंग टू प्रमोट द नेक्स्ट फिल्म सिटी. Yeah, I heard. Nobody moved because the culture was built Culture is here. within Mumbai. So Correct. everybody जिसको films और ये सब में जाना है, तो the destination is Mumbai. Let's create the creator city in Vasai Virar. Whatever support you need,
I will go out of the way and make sure that, and it will be one of a kind in the entire country. Yeah. Like creator city, I don't think there is another creator city in the entire country. अभी तक तो नहीं है, अभी बहुत जल्द. और एक बहुत I अच्छा, और would एक बहुत- recommend आप लोग initiative लो. और You एक- run the entire show. नहीं, I नहीं, will help और you. एक बहुत अच्छा नाम मिला है मेरे को, क्रिएटर सिटी. Subtle promotion, guys. We have not taken any money for this interview. Please, अभी नीचे comment आएंगे कि पैसा लिया है promotion का. No, but I it's just- really love the idea. मतलब जब ये अभी बोल रहे तो the primary reason for us to विरार को मतलब थोड़ा हमने मुंबई से जाना पड़ा because of the meetings that happens in Mumbai. But जैसे इन्होंने बोला कि अगर सब कुछ यहीं पे हो रहा है तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है यार, सब कुछ विरार में होगा तो people don't even have to travel to Bombay. मतलब विरार में if I'm not wrong 99-95% लोग they travel to Bombay because सब कुछ वहीं पे है. And कोई दिल से travel नहीं करता. Nobody यार- wants to go through that struggle. I obviously. completely understand. And that's why projects like these are very, very important for our area. Not only Vasai Virar, it is also it's also going to benefit Mumbai. It's also going to benefit Thane. Absolutely. It's also going to benefit the entire Palakkad district. Correct. क्योंकि आप decentralize करो. Why does everything has to Has go to to go Mumbai? मतलब there. एक ही चीज बढ़ रहा है, बाकी सब Exactly. मतलब I And understand. it is a problematic situation even for people of Mumbai. अभी यहाँ से सुबह जाके निकलो, पूरा ट्रैफिक जैम, रेलवे जैम, कल कोस्टल हाईवे होएगा, कोस्टल होएगा हाईवे ही, जैम जैम होएगा, मेट्रो जैम. The only way is decentralization. एग्जैक्टली. Correct. 20 मिनट्स मेरे घर से स्कूल रहना मांगता है, 20 मिनट्स मेरे घर से ऑफिस रहना मांगता है, 20 मिनट्स मेरे घर से Creator city रहना मांगता है. क्रिएटर सिटी रहना मांगता है. So on those lines. Absolutely loved it. We will definitely मतलब मैं और तू हम लोग सोचेंगे and let's make it happen. मतलब वसई विरार में Creator city. perfect idea. So coming back to the point, जैसा बॉलीवुड का कल्चर बॉम्बे में हुआ या मुंबई में हुआ, वैसा क्रिएटर सिटी का कल्चर लेट्स बिल्ड इट इन वसई विरार. इंफ्रास्ट्रक्चर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक वॉट एवर यू वांट in terms of infrastructure, because I have very limited knowledge in terms of how things work on your side. Correct. It's on my forte. मेरे को उसमें उतना कुछ नॉलेज भी नहीं है. Infrastructure, world class infrastructure is my guarantee. Like you tell me what you want, I will make sure if you tell me 10 things, I will give you 11 things. Running the show is your responsibility. Because that is something that I'll help you. Like if you want whatever help in terms of operations and Yeah, planning, I obviously. will help you. Obviously. But I don't understand that the ecosystem or whatnot. नहीं 100%. A lot of creators who are trying to create content from Vasai Virar reach out to us in terms of helping them. But कभी-कभी कैसा होता है, उनको तरीके नहीं पता, they have the creativity. So that is where this can help them grow. We could, since we have seen everything now, we can help them and give our experience, and with your infrastructure, you can obviously help a lot of बहुत people. अच्छा एग्जांपल भी है ना कि वी यूज्ड टू शूट अ लॉट ऑफ अ कंटेंट इन ग्लोबल सिटी. तो वो ग्लोबल सिटी का जैसे हमने बोला कि ब्राउन और बीएचएल की बिल्डिंग से लोग को समझ जाता है कि ये ग्लोबल सिटी है. सो वो करते करते हम लोगों ने सब वीडियोस वहीं पे बनाई है. तो वी स्टार्टेड सीइंग कि ग्लोबल सिटी के रास्ते पे लोग वीडियो बनाने लग गए. हर कोई कैमरा लेके फोन लेके दिखता है. और हम लोग को तो ये भी सुनने में आया था कि वो ऐसा फंचो रोड जैसा फंचो सिटी ऐसा नाम बोल दिया था. बट इफ दिस वुड हैव बीन देयर क्रिएटर सिटी, सो आई थिंक एवरीथिंग वुड हैव हैपेंड देयर इटसेल्फ. आई मीन नहीं, I'll be more than happy because see, जैसे मैंने पहले बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ रहा है, एंड स्पेशली विद योर सेक्टर लाइक यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक और वॉट नॉट, international companies are paying to make sure that you are self-employed, you can run it as a business, you can make decent amount of money. 100%. तो the next generation को एक direction अगर मिलता रहेगा, and if I can be a part of helping build that entire ecosystem, and can we create that, I'm seriously, I'm excited. We are. आपके चेहरे से दिख गया था मोमेंट यू आर सेइंग, तो Excited. एकदम से यहाँ से आप ऐसा हो गया. लाइक आई कैन अंडरस्टैंड द एक्साइटमेंट एंथुसियाज्म. Obviously, I am more excited on this, but I want to think it through. मतलब, there's a lot of work that will be needed, and we are ready to do it, and we'll definitely get back to you. I'll be more than happy to help you guys. Yeah. Like building that infrastructure, you leave to me. I'll make अच्छा sure वो that मैंने it will be. विरार के घर बेचे नहीं है अभी तक. इधर आगे Coming back. कमिंग बैक. I told him my dream is to come back to Virar in few years. कि मैं विरार के बाहर ही नहीं जाना पड़े. That is my dream. I don't want to live there. मतलब obviously work is there, but I rather love to stay in Virar because we've मतलब brought up here हुए यार. मतलब 2003 से हम यहाँ रह रहे हैं. There are a lot of emotions attached. Get the entire creators We'll get from it. Mumbai to Virar. डन. कमिंग बैक टू बीचेस, मतलब मैं Beaches. मेरे को बहुत अरे You know ना? बीचेस गाइस. तो मेरे को राजोड़ी बीच बहुत पसंद है. मतलब दैट्स माय पर्सनल फेवरेट. आई हैव बीन टू नवापुर, आई हैव बीन टू मेनी बीचेस. मुझे राजोड़ी बीच बहुत पसंद है.
But I have seen मतलब people exploiting that beach. मतलब जो वहाँ पे stones है, वहाँ पे जो पत्थर है, I have seen people littering it out. मतलब इतना प्यारा है. अगर आप वो पत्थर का मैं नहीं देखो, खाली आगे देखो तो कितना सुंदर लगता है. बट थोड़ा मैं जब आजू बाजू देखता हूँ, मैं अरे यार. So I mean, would you like to say something to those people? I mean, ये And मेरा how दिल can we से do it? मतलब if there are a lot of things you might trying to be do. I'm 100% sure. If Fancho could anyway go out and help you, जैसे awareness में. we have a lot of our fans, our audience from Vasai, Virar, Naigaon and Palghar तक, and I'm sure अगर हम कुछ भी साथ में करेंगे तो जितने भी लोग देख रहे हो सब आएंगे. So if there's anything we can do, because मेरे को We're बहुत lucky to have पसंद that distribution which we Yeah. can use to a better place apart from entertaining them. Obviously, we are doing it. मेरे को राजोड़ी से इतना प्यार है, मैं आपको क्या बताऊं. मैं मतलब कभी कुछ होता है मैं जाके सीधा सीधा जाके बैठ जाता हूं. I feel I really love it. Lot of NGOs and activists do beach cleaning drives once every year. I don't think that's the solution. There has to be awareness कि see कैसा है, हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम कचरा नहीं डालते, लेकिन as soon as I get out of the house पानी का बॉटल पी के डायरेक्टली नीचे डालते हैं. Let's do this awareness campaign. Let's do it. So I'll give you an example. ये भी हमें केस स्टडी में था. So Texas in the US, they don't give a shit about anybody. Like you know they have their own, like we are Texans, and there was क्या a बोला आपने? Texans. like they Texans. are proud to be Virarkar types. हाँ. exactly Virarkars. मैं RME Virarkar. They used to litter everywhere and you know throw garbage everywhere and whatnot. And there were multiple companies hired to make sure that there was awareness. Everything failed because all the campaign said was कि आप इधर litter मत करो, आप इधर कचरा मत डालो. तो people started littering more. तू कौन बोलने वाला मुझे कचरा मत फेंक? मैं टेक्सन हूँ. Exactly. You cannot tell me. तू मेरा कोई नहीं, मैं जो करने का वो करेगा. एक कंपनी को हायर किया था तो उसने जो ब्रांड कैंपेन रन किया लाइक डोंट मेस विथ टेक्सास. इट वाज अ डबल मीनिंग का लाइन. Yeah. डोंट मेस करते हैं ना, एंड डोंट मतलब- मेस विथ टेक्सास. मतलब It was मेरे like से being लड़ना with their मत. agenda, they are promoting Correct. theirs. So that created that ownership vibe कि तू मेरे साथ लड़ मत. And the other meaning was तू मेस कर मत. जो कचरे Obviously. अपन मेस करते हैं. And that one line created so much awareness in Texans that पूरा कचरा डालने का सिस्टम बंद हो गया. Because they spoke in their language Wow. कि don't mess with Texas, don't mess with Texas. तो जब तक people don't take ownership of whether it is house, मोहल्ला, गली, city or the country, there is nothing that you can do. Cleaning drive आप साल में एक बार कर पाओगे. नहीं, क्लीनिंग से तो नहीं होगा. मतलब हमने किया भी है. We need to start job. Obviously, you guys are creative, right? Yeah. Can we come up with a tagline like "Don't mess with Texas"? Yeah. Done. जैसे On अभी those मेरे दिमाग lines में where है people कि start taking ownership कि this is my city, my area, rather my than house. saying don't litter, we could say I am a Virarkar, let's keep it clean. Or maybe an ownership कि भाई Virarkar हूँ मैं, to make them proud about Virar. Exactly. And that's how maybe we should do it. और सर क्या चल रहा है बताओ? और कुछ नहीं चाय election. कॉफी कुछ पियोगे अपना ही समझो. तो इलेक्शन चल रहा है, प्रेशर नहीं है, कल इलेक्शन है. जरा भी नहीं, जरा भी नहीं. जो क्योंकि मैंने जो काम बोला. था I guess वो हो गया. अभी आप you just have to wait. I mean for whatever work you have done, people will see it and that's up to So what them. is the closest victory? मतलब जैसे what are the number of seats that you have in this elections? So we have multiple seats, primarily Vasai, Sopara and Boisar. Okay. हाँ. 3 seats. तो ऐसा कभी हुआ है कि आप मतलब opposition इतना strong हो गया हो that you couldn't मतलब, or it is always कि there is no strong opposition here, I would prefer having strong opposition. पर नहीं है अभी. नहीं है. Strong opposition. So what do I consider strong opposition? जो मुझे मेरी गलतियाँ दिखाए. Exactly. तो मुझे भी सीखने को मिलता है कि if somebody tells me that this is something that you're doing wrong, ये गलत कर रहा है तू, I would prefer that. That is how I will be able to grow. Obviously. अगर सब अरे बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत अच्छा, बढ़िया, अच्छा, बहुत तो कैसे बढ़िया, करेगा? that is मेरा नुकसान है उसमें in the long run. तो I would prefer कि, and this is I spoke to my father regarding this. Last municipal election में out of 215, 109 cooperators हमारे पार्टी के चुन के आए, अपने पार्टी के. And that time after the result I told Papa कि Papa we need to have strong opposition because 109 people will be lethargic. अगर The सामने willingness to competition- learn कि अगर सामने मेरा कोई गलती दिखाने वाला नहीं है ना तो मैं लेजी हो जाऊंगा. Absolutely.
सो आई प्रिफर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो मुझे मेरी गलतियां बताते बैठे. आज ऑपोजिशन जो भी आरोप कर रहा है हैज़ नो सेंस. लाइक आई इनवाइट देम कि एक स्टेज पे आओ, एक प्लेटफॉर्म पे आओ और लोगों के सामने मेरे पे आप आरोप करो. Who would want that? Like, why would I want to tell the opposition कि मैं सुन रहा हूँ, आप लोगों के सामने मेरे पे आरोप बुराई करते करो, बैठो, हाँ. आप मेरी बुराई करते बैठो एंड आई विल रिप्लाई टू वॉट एवर आरोप आप करोगे. हर इलेक्शन में हम बोलते हैं, वो लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आरोप करते बैठे, नॉट अ सिंगल इलेक्शन वो लोग सामने आते हैं. इस इलेक्शन में भी हमने बोला था कि अब आओ हमारे सामने और आरोप करो, हम जवाब देते हैं. कोई नहीं आया. सो आई डोंट टेक देम सीरियसली बिकॉज उतना कैलिबर और क्रेडिबिलिटी नहीं है. करेक्ट. अनफॉर्चुनेट है वो. आई वुड प्रेफर टू हैव स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जो जेन्यून हमारे मिस्टेक्स दिखाए, जेन्यून हम लोग को डायरेक्शन अगर देना कोई तो भी सिखाए तो हमें भी मजा आएगा. देन आई विल ऑलवेज हैव टू बी ऑन माई टोज कि सामने वाला जो है वो जेन्यून बात कर रहा है. सो रिपोर्टर्स, देर आर वेरी फ्यू रिपोर्टर्स जो अगर हमारे बारे में लिखता है ना तो वो चुपता है, बिकॉज वो मैनेज होने वालों में से नहीं है. दे आर जेन्यून रिपोर्टर्स. बाकी मेजॉरिटी आई डोंट टेक देम सीरियसली. लाइक आई विल नॉट नेम एनीबडी. सो देर आर फ्यू पीपल हु ऑलवेज शो यू द मिरर एंड दैट हेल्प्स यू. Genuine opposition अपने पास, that's why I'm not really, I'm sitting hanging out with you guys, we're just having fun. We'll try to be that friendly opposition which helps you grow. I mean, Thank you. I would हमको कुछ appreciate भी that. दिखा तो we will at least, because we also want Virar Vasai to grow. I would completely Who would not appreciate want that. I would really appreciate that. And I invite anybody and everybody. तो हमारा campaigning भी क्या रहता है कि we go among the people, let people ask questions. बाकी के कैंपेन जैसा बड़ा स्टेज है, बैनर लगा है पीछे, घोषणा चालू है एंड नेता आता है, भाषण दे के निकल जाता है. वी डोंट डू एनी ऑफ दोज थिंग्स. एवरी इलेक्शन छोटे छोटे पॉकेट्स में, अलग अलग एरिया में मीटिंग्स होते हैं. मीटिंग्स मतलब क्या, आप बोलो क्या काम बाकी है, वी विल रिप्लाई टू वॉट एवर यू आस्क अस. करेक्ट. लोग इसलिए रिस्पेक्ट करते हैं, हम भाषण दे के भाग नहीं जाते. But I would recommend you something. जैसे मैंने, you do a lot of sabhas like this, but I've heard you stay away from social media and you're not using. I think you should use this media for your own awareness. जैसे आप जो सभा लेते बहुत हो, मुश्किल ना, फिर पंचों की रील दिख जाएगी, फिर he'll get diverted, he'll start laughing and all. उनको काम करने दे ध्रुव. but seriously, if you use those, जैसे आपकी जो सभा है, like the things that we heard today, I don't think they are out publicly. Yeah. If you could use social media in a way where these things are out, it will help everybody. I guess Everybody is Sabhas trying is to. mostly for elderly people. If I'm not, मतलब I can be completely wrong. जैसे हम मतलब यंगर ब्रैकेट में आते हैं तो जो सभाज होगी शायद वो एल्डरली लोग के लिए होगा, बट यंगस्टर्स मे बी आर अनअवेयर ऑफ इट कि व्हाट्स हैपनिंग. I understand. बट Because फॉर उन लोग दैट का भी- सोशल मीडिया इज, आई मीन, काम पे रहते हैं, टाइम नहीं रहता है. Obviously they are trying to earn their bread. They Right. need it. They don't Right. have time to fight for something because फिर रात को रोटी खानी I है ना. understand, I So understand. that is where social media comes in. I don't know how it works, but it's an idea where you could use social media to a great cause. मतलब जो आप बात करते हो, जो आप चीजें, Yeah. वो शायद सोशल मीडिया से और बाहर आए तो और हेल्प होगा. You educate me. I don't know how to use, like उतना मैं active नहीं है, but maybe off the camera, maybe you can give me a certain pointers and tips and tricks. हाँ, जैसे कि जैसे क्या आपने ये करना जो चाहिए. बताया, the land that you're trying to take to build, I don't know how it works, but if this would have been out publicly in a way of content, it could have been created some pressure. आज विरार वसई वाले ही शायद और उसको शेयर करते, इतना प्रेशर शायद उस गवर्नमेंट पे क्रिएट होता कि वो एक टॉपिक उनके नजर में आता और at least उनको एक- दिखता कि पब्लिकली बात हो रही है. एक And they topic would have पे given debate, the- yeah. maybe it could have been. Yeah, possible. You give me certain tips and Whatever. tricks and pointers, and maybe I'll start learning from you guys, and let's then- implement some things that I learned from you. Yeah, we can help each other grow. विरार वसई, why not? Yeah. I think We should मजा आ गया. let him Let him. now get free and work for his elections. वरना ये तो बस, चलते ही रहेगा. Yeah. But thank you so much. It was No, really thank you nice. so much. I really appreciate, and I'm going to get you guys back to Virar. Let's Arey, create wow, let's wow. create the creator city, and I'm really serious about helping you out. You guys will have to run the show because I don't understand your. We'll together do it. I mean, you are expert of your forte. We are experts of our forte. We together come in with our expertise and we can do wonders. I agree. We'll do Done. it. करते हैं. Thank you so much. सबसे पहले तो ये awareness campaign करते हैं. Yeah. I really like the Texas वाला, and we are
into storytelling. We are into creative storytelling, and it's really boring when a social campaign is not using creativity. Because both of you guys are and were from Virar, right? Yeah. Yes. Why don't you guys become the brand ambassador of Vasai Virar Municipal Corporation? Sir, ऐसा मत करो sir. नहीं, I mean, It is your city. it is our city, but I don't know about municipal corporation, but Vasai out Taluka, there, Vasai we are Taluka. already the faces of Virar Vasai, which we are trying to लोग बोलते हैं कि विरार हम लोग तुम लोग के नाम से तुम लोग ने विरार का नाम इतना आगे लेके गया. And what we have made sure about one thing, be it in Delhi, be it in wherever, whatever event we are, we have always specified we are from Virar. I'll show you one video. So whenever we get opportunity in a very funny way to take the names out, Virar, Vasai. So with Nora Fateh we did a video, and she said, "मैं तो नाला सोपारा से हूँ." We did a video with Rabada in South Africa. Kagiso Rabada, he's a bowler. I'll just show you that video. So he said, "अरे मैं तो नाला सोपारा से." So we, when and where we get this opportunity, we try to take out the name of Virar Vasai always. Now everybody जो भी हमको मिलता है, अरे विरार वाले, वसई वाले. I think I've seen that video. You have? I have. Yeah, I've seen this I'm video. Rabada from South Africa. South. Huh? Even we are Pancho from South Bombay. South Bombay. South Bombay. Yeah. Are you guys fielders? Why? Don't fake there, chavo. मुझे पता है तुम विरार से हो. हाँ I've तो seen क्या this. हो गया विरार मतलब साउथ तो है ना साउथ ऑफ पालघर South Parlor से ना. so Rabana you will be coming to Mumbai for some matches right so let us teach you some Mumbai local etiquettes so you can travel yeah बेटा पापा को मत सिखाओ. China I've seen this video. इसको आता है सब How do you know how to travel in Mumbai local? बैग आगे लो. लट को. हिलो. और जाओ. इसको इतना सब कैसे मालूम मेरे को नहीं लगता है साउथ अफ्रीका से. कहाँ से हो आप नाला सोपरा. I've seen this video. I've seen this video. Final, let's end it. Thank you so much, Kshitij. नहीं, I Appreciate appreciate ज़्यादा. it. Thank you. And thank you so much for doing this. I mean, हम भी हमें विरार से इतना क्लोज कनेक्शन है. कल जैसे ये विरार आया, इसने राजोड़ी बीच पे आया था, इसने स्टोरी First अपलोड thing किया. we do is we go to Rajodi. he uploaded a story saying home so that people still believe that हम लोग विरार से ही है. And it's amazing to connect with you. Finally, आपसे बात हुई कि मतलब we had so many doubts about कि what exactly the behind the scenes situation is. It was amazing to talk to you, and जब part 2 करेंगे तब और बात करेंगे. पक्का. A lot of conversations that we would love to have more and try to help you, because हम लोग जब भी करते थे हमें बोलते हैं हमारे ऑडियंस है, we are just entertaining them, obviously अच्छे वे में, but if we could use this distribution For in the some betterment of better way, society. Right, Yeah, why right, not? right. and obviously with the infrastructure you have, the power becomes double. अभी समझो मैं कुछ कर रहा हूँ, but with the infrastructure that you have, it multiplies. Correct. So we would definitely explore यार. Done. कुछ अच्छा. I'll be more than happy. Done. Perfect. So thank you so much. Thank And it you, was thank you. amazing talking to you, and all the best for your All the elections. best. Thank you. elections. Thank you.